Good morning, dear students. Physics 11 Science, chapter number 3, Motion in a straight line. Now, in previous lecture, we can discuss path length and displacement. Now, today we have discussed average velocity and average speed. First of all, what is average speed? Average speed is defined as the total path length traveled divided by the total time interval during which the motion has taken place is called average speed. या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, total distance, the ratio of total path length covered by object to the total time interval is called average speed. Total path length traveled by object in total time या per unit time is called average speed. Unit is meter per second or kilometer per hour. 1 kilometer per hour is equal to 1000 by 3600. 1 hour is equal to 3600 second. 20 cut, 5 to the 10 and 18 to the 36. तो किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5/18. एवरेज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 l1 t-1. एवरेज स्पीड is equal to total path length divided by total time is called average speed. Now average velocity. So what is average velocity? So average velocity is defined as the change in position or displacement divided by time interval is called average velocity. या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज का सिंबल है. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या रेशियो ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स दैट मीन्स x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन एंड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम t2 माइनस t1. इफ x2 greater than x1 then average velocity becomes plus. But if x1 greater than x2 then average velocity becomes minus. So average velocity is a vector quantity. Average velocity is a vector. Average speed is a scalar. Average velocity positive negative may be 0 but average speed is always positive. Dimensional formula and unit are same. Unit भी मीटर पर सेकंड है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है, m0 l1 t-1. An average speed always greater than or equal to average velocity. Average speed is always greater than or equal to average velocity. Now graph of x versus time t. Different 3 graphs. First graph x axis पे time and y axis पे x. x is a position, t is a time. First graph में straight line है, means time becomes change but position of an object remains same. That means कि आप स्कूल में हो तो 7:30 पे आपकी पोजीशन क्या है स्कूल क्लासरूम के अंदर. 7:45, 8, 8:15, 8:30 टाइम तो इंक्रीज होता ही है बट आपका पोजीशन क्लासरूम के अंदर सेम है. दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम 0. टाइम इंक्रीज, पोजीशन रिमेन सेम. आप 7 बजे, 7:15, 7:30, 7:45, 8 आप स्कूल के क्लासरूम में ही हो तो वेलोसिटी बिकम 0. तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज. पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम t. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन. वेलोसिटी बिकम्स 0. और वैसे ही x वर्सेस t ग्राफ t है और उसका स्लोप आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी. बट यहां पे तो कोई स्लोप है ही नहीं, स्लोप 0, वेलोसिटी बिकम 0. तो स्लोप ऑफ ग्राफ x वर्सेस t इज गिवन अ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी.
सेकेंड केस, यहां पे ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स टाइम तो इंक्रीज होता ही है बट पोजीशन भी चेंज हो रही है. पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स चेंज विथ टाइम t, सो इट कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल पोजीशन चेंज हो रही है, तो इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. तो यहां पे सपोज एट t1 टाइम पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज x1, एट t2 टाइम पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज x2. ये एंगल थीटा. स्लोप मीन्स tan थीटा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स. स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू AB by BC. AB by BC, but AB is equal to x2 minus x1, that means delta x. AB by BC, x2 minus x1 by t2 minus t1. AB by BC, BC is equal to t2 minus t1. तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 minus x1 by t2 minus t1 is equal to delta x by delta t. In this situation, x2 is greater than x1. x2 greater than x1. That means in second case, average velocity becomes positive. Now in third case, ग्राफ यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. लेट्स कंसिडर एट टाइम t1 पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज x1. At time t2 position of an object is x2. So average velocity is, इक्वेशन चेंज नहीं होगा, इक्वेशन तो वही रहेगा, डेल्टा x by डेल्टा d. That means x2 minus x1 by t2 minus t1. तो डिफरेंट क्या है, इसमें x2 ग्रेटर देन x1 है, यहाँ पे x1 ग्रेटर देन x2 है. एंड इफ x1 ग्रेटर देन x2 देन एवरेज वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव. यानी इसमें एवरेज वेलोसिटी आपको माइनस मिलेगा, इसमें पॉजिटिव मिला, और फर्स्ट केस में एवरेज वेलोसिटी बिकम्स 0. तो ये डिफरेंट 3 ग्राफ्स ऑफ एक्स वर्सेस t थे. नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.1. अ कार इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, से OP in figure. It moves from O to P point in 18 seconds and return from P to Q point in 6 seconds. So what are the average velocity and average speed of the car in doing from O to P and from O to P and back to Q? चलो फर्स्ट पोजीशन हमने ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया है. 0, 40, 80, 120, 160, 40 की गैप है. ये सब डिस्टेंस मीटर में दिया है आपको फ्रॉम O to P पॉइंट. तो पाथ लेंथ कितना हुआ O to P 360 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट वो भी 360 मीटर, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा स्ट्रेट डायरेक्शन में तो पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम. कितने टाइम में मोशन कर रहा है, इन 18 सेकेंड्स. सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू पाथ लेंथ बाय टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. पाथ लेंथ 360 by 18, 360 by 18. तो इन दिस सिचुएशन स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर सेम, 20 मीटर पर सेकेंड. फ्रॉम सेकेंड इज फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q. O to P एंड बैक टू Q, यानी जाते वक्त यहां पर 360, रिटर्न में 40, 40, 40 यानी 120. तो 360 उसमें और 120 प्लस करो तो 480 मीटर पाथ लेंथ. एंड डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल, 240 माइनस 0 यानी 240. तो डिस्प्लेसमेंट इज 240 एंड पाथ लेंथ इज यहां से 360 प्लस 120 यानी 480 मीटर. कितना टाइम लगा, तो यहां तक तो O to P आने तक तो 18 सेकंड है, फिर P to Q जाने में दूसरे 6 सेकंड, यानी टोटल टाइम कितना होगा 24 सेकेंड्स. फिर से एवरेज स्पीड इज इक्वल टू पाथ लेंथ बाय टाइम, 480 by 24 यानी 20 मीटर पर सेकेंड. एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो 10 मीटर पर सेकेंड्स. ये एग्जाम्पल 3.1 हुआ.
नेक्स्ट इज इंस्टंटेनियस वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टंटेनियस वेलोसिटी बिकम्स डिफरेंट. एवरेज वेलोसिटी मीन्स आपको टाइम इंटरवल दिया होगा कि 10 to 10:30 आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 10 to 10:15 कितनी है, 2 to 4 seconds फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 6 seconds. तो ये टाइम इंटरवल हुआ. बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट मीन्स अ वेलोसिटी एट पर्टिकुलर दैट टाइम. The velocity of an object at an instant time and is called instantaneous velocity. For example, आपको कोई बोले स्कूल टाइम के अंदर सब स्कूल चालू है और आपको कोई पूछे कि 9 and 9:30 के बीच में आपकी वेलोसिटी, तो आप बोल सकते हो कि भाई 0, क्योंकि बिटवीन 9 and 9:30 आपकी पोजीशन क्या है, स्कूल. बट एग्जैक्टली अगर आपको कोई पूछे कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 1:11 12 या 12 and 10 यानी 12 बजे और 10 मिनट पे आपकी पोजीशन कहाँ थी, तो कोई भी इंस्टेंट टाइम के अंदर वेलोसिटी आप फाइंड नहीं कर सकते. द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट टाइम इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एज द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, वी नो दैट. नाउ टेक द लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0. अब ये आपके लिए नया है, ये ध्यान रखना. लिमिट मैथ्स में आता है 12th साइंस में, बट अभी इतना याद रखो कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए तो डेल्टा का डी हो जाएगा. डी फॉर डिफरेंशिएशन, डी फॉर डेरिवेशन, डी फॉर डिफरेंशिएशन और डेरिवेशन, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेशन ऑफ एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी स्केल वेक्टर क्वांटिटी है, उसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड आएगा. डायमेंशनल फॉर्मूला m0l1t-1. एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर, लेकिन चेंज क्या है, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आपको पोजीशन का डेरिवेशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. या फिर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको टाइम इंटरवल चाहिए 2 to 4 सेकेंड या 2 to 8 सेकेंड, वॉट एवर. वो हम सम्स करेंगे तब आपको पता चलेगा.